Jai Hind दोस्तों, welcome back to PDA classes. Here I have another video for you. Practice the questions and I have especially questions of the noun topic. Okay, as you know, my practice series I have completed 14 or 20 maybe lectures, and in the series of the practice I have continuously providing the series of the SSC practice questions of the SSC, NDA, CDS, and lots of the exam which is conducted in our country related to English grammar. Now in this there's lots of the student and also offline classes, they are saying, sir, please conduct some practice related to a special topic, and now so special topic about noun. In this we are going to discuss about the noun. There's a 7 question, and after this we are further on discuss, and I'll going to discuss all the questions in a detailed manner. So you have to listen each and every question in a crucial manner and try to note it down, because it is going to be very important for you, because these all are the previous year questions related to NDA, CDS, which is frequently asked in the exam. So let's start our video, and this is the practice video of the noun. Okay, get it? Now the first question is, my uncle gave me a pair of trousers on my birthday, no error. The very first thing you have to notice this, that first of all you have to check the question related to parts of speech. Is there any mistake of parts of speech? Okay, and after that you have to check it out with the tense, means to say time and tense. Okay, time and tense. यहाँ पे let me write this time and tense. Okay, time and tense. Time and tense. So you have to notice these two things. First is time and tense, second is parts of speech. First of all, let's try to find out if there's any error in this question related to time and tense. Time and tense, you know very well what I'm talking about. Actually, was, were, ठीक है, is, are, am, I'm talking about these all. ठीक है, has, have, had, these all the things. Okay, so if you want to know, or if you want to learn the basic English grammar from basic to advanced, then you can watch my all the seasons of basic English grammar on YouTube PDA classes. You can find out in the playlist. Okay, the very first question, my uncle gave means to say past tense. It is showing the past tense. ये क्या बताता है आपको? पास्ट टेंस के बारे में बात करता है, ध्यान रखिएगा, ये पास्ट टेंस की बात करता है गैप, क्योंकि V2 है, V2 हमेशा पास्ट में जाता है। मी अ पेयर ऑफ ट्राउजर ऑन माई बर्थडे, तो देखिए उसने कहा भैया पेयर ऑफ ट्राउजर्स दिए मेरे अंकल ने मुझे बर्थडे पर, यानी दे चुके हैं, तो पास्ट की बात निकल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि टाइम और टेंस की इसमें कोई गलती नहीं है। तो अब सर क्या चेक करना है इसमें? यू हैव टू नोटिस अनदर थिंग दैट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चेक करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। जैसे क्या मी सही लिखा है? ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही लिखा है, मुझे दिया है। क्या अ पेयर ऑफ ट्राउजर सही लिखा है? अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को नोटिस करते जाइएगा। ऑफ, कभी भी whenever you find of in the sentences, then you have to remember if noun is countable, अगर noun काउंटेबल होता है तो वो प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल। मैंने क्या बोला? ऑफ के बाद नाउन अगर काउंटेबल रहता है, नाउन अगर काउंटेबल रहता है तो क्या होगा? प्लूरल होगा, ध्यान रखो। और ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल आता है तो सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। कितनी सी बात बोली मैंने, एक बार मेरे साथ रिपीट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक दो एरर कंफर्म किसी भी एग्जाम में मिल जाएंगी। अगर मान लीजिए सीडीएस का देते हो तो 10 एरर आती है, 10 में से 2 मिल जाएंगी कंफर्म। तो इसलिए बोल रहा हूं ऑफ से रिलेटेड देख लीजिए। ऑफ लिखा है, ऑफ के बाद क्या नाउन अगर काउंटेबल मिले, गिन सको तो प्लूरल बना देना, अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर ही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन द नाउन व्हिच इज अनकाउंटेबल आफ्टर ओ ऑफ। ओके, What we are talking about? We are talking about off. Off के बाद चेक कीजिए ट्राउजर। ट्राउजर गलत लिखा है, बिकॉज ट्राउजर्स होता है, पेयर ऑफ ट्राउजर्स होता है, यहाँ पे ट्राउजर्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? ट्राउजर्स, बिकॉज ट्राउजर्स जो आप पहनते हो ना उसमें 2 होते हैं, ठीक है, 2 पैर होते हैं, 2 पैर डालते हो ट्राउजर में, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो ट्राउजर में आपको क्या है? ऑफ, यहाँ पे प्लूरल है, ट्राउजर्स होना चाहिए था ऑफ के बाद, इसलिए ये एरर था। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन is at the moment we have very little informations to go on, no error. Now again you have to go with the structure। टाइम और टेंस देखिए, और टाइम और टेंस देखने के बाद आपको क्या देखना है? आपके सामने टाइम और टेंस देखना है। टाइम और टेंस देखा, क्या है इसमें कोई एरर है? एट द मोमेंट वी हैव लिखा है,
लिटिल इंफॉर्मेशन टू गो ऑन। देखिए यार हैव लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का है और टू गो ऑन यहाँ इन्फिनेटिव्स हो गया, ऑन आपका ये टाइमिंग बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, इसमें नाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन, यानी कि एरर आपका लाई करेगा बी पार्ट में। यहाँ पे बी पार्ट लिखना था, ओके, तो बी पार्ट में एरर लाई करेगा बिकॉज इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल है। लिख लीजिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, जैसे कि एड इंफॉर्मेशन, जैसे कि लगेज, क्या लगेज, ठीक है, जैसे कि सीनरी, सीनरी, इनके कभी प्लूरल नहीं होते, ध्यान रखो। एस मत लगाना गलती से भी, कभी गलती से इनमें एस मत लगाना। मैंने एक साथ दो इंफॉर्मेशन मैंने बोला था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिटेल कंसेप्ट ऑफ द नाउन। अगर इससे भी ज्यादा डिटेल जाना है तो नाउन की पूरी सीरीज डाल रखी है, आराम से जाकर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको बोलते हैं ना, जैसे कि आपने बोल दिया स्टेशनरी, ठीक है, आपने बोल दिया स्टेशनरी, स्टेशनरी बोल दिया, जैसे कि आपने बोल दिया फिल्थ, फिल्थ, ठीक है। तो ये सब कभी प्लूरल नहीं होते, इस चीज को याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट मूव, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क नो एरर। देखिए मैं यहाँ पे बताऊं, बहुत प्यारी एरर है, कि आप देख सकते हो, जल्दी देख के बताओ मुझे, क्या आप बता सकते हो इसमें? आई थिंक आपने मे बी नहीं फाइंड आउट कर पाई हो। देखिए ही टेक्स लिखा है प्रेजेंट में, किसमें? प्रेजेंट में, नो एरर। वो ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, वह दुख लेता है अपने वर्क में, उसे तकलीफ होती है अपने कार्य से, तकलीफ होती है। पेन गलत लिखा है सर, क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे लेट मी इरेज दिस, यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा यार, मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। क्या मैंने बात की, सुनिए। ये पेन लिखा है, पेन, पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। क्या होता है? दर्द। जब इसमें एस लगाते हो ना, काया पलट हो जाती है। पेंस, इसका मतलब होता है तकलीफ, तकलीफ, तकलीफ लिख लो, जैसे कि और लिख लो, ये पेपर में आता है। क्या बोला यहाँ पे? तकलीफ आनी चाहिए, उसे अपने अपने कार्य से तकलीफ होती है, तकलीफ लेता है, प्रॉब्लम होती है, दर्द नहीं लेता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। बहुत गर्मी है यार, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, अगला, अगला वाटर, वाटर। अच्छा चलो बताओ, इतना भी इंग्लिश पढ़ी तो बताओ, इसका मतलब होता है पानी, सबको पता है। अगर मैं वाटर्स लिख दूं तो बताओ कितना इंग्लिश पढ़ा, पता चल जाएगा। वाटर्स लगाने पे क्या होगा, अब बताओ ना। वाटर्स लगाने पर मतलब आपका होगा मतलब समुद्र, क्या समुद्र, जानते हो ना। देखा, एस लगाने पे क्या मतलब हो रहे हैं, जैसे वुड, 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 वुड फेमस है। अरे सर ये तो जानते हैं लकड़ी होता है। क्या सर क्या पूछ रहे हो, अब बता दो ना यार मेरे भाई, लो अब बता दो, बहुत बनता है। वुड्स, जंगल, क्या होगा? जंगल हो गया ना, जंगल में मंगल। देखो वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी में एस लगा दिया, कितना काया पलट हो गई। ध्यान रखिए वो वर्ड है जिनके साथ कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। अगर इनके साथ ये सब क्या एब्स्ट्रैक्ट में आएंगे, कहने का मतलब एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल दो ही होते हैं। अगर आप इनको बदलते हो एस में तो फिर इनकी काया पलट हो जाती है, इनके मतलब ही कुछ और हो जाते हैं। नेक्स्ट, और कुछ लिखा दूं क्या? ठीक, डिजर्ट, डिजर्ट पता है ना, डिजर्ट क्या होता है? अरे रेत होती सर, जानते हैं। तो फिर डिजर्ट्स क्या होता है? डिजर्ट्स, अरे रेगिस्तान, रेगिस्तान, ठीक है ना, ठीक है। अरे डिजर्ट यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, लेट मी इरेज दिस, डिजर्ट नहीं, सैंड, सैंड वॉक, क्योंकि डिजर्ट का तो मतलब ही रेगिस्तान होता है। सैंड का मतलब होता है बालू या फिर रेत। क्या होता है? रेत। सैंड का मतलब क्या होता है? रेत। तो सैंड का मतलब क्या होगा? रेगिस्तान, ठीक है। देखा, ये वर्ड आपको लर्न रखने हैं, रेगिस्तान। और देख लो, फ्रूट। सर फ्रूट क्या होता है? फ्रूट का मतलब होता है फल, फल, फल। अगर मैं फ्रूट्स लिख दूं, फ्रूट्स लिख दूं तो क्या होगा? इसका मतलब चेंज हो जाएगा, इसका मतलब होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट। ये खाने वाला फल है, याद रखना, ईट करने वाला, ठीक है। अब इससे ज्यादा जानना है मैं इतना ही डिस्कस कर सकता हूँ। इससे देखिए नोट बनाते जाइए अच्छे से, क्योंकि कब क्या चीज पेपर में कब टकराएगी बिल्कुल मालूम नहीं है। और ये वो सब सार है, मैं जो क्वेश्चन लाया ना, ये तो सब नाम के लिए है, ये सब डिस्कस करना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। क्वेश्चन के थ्रू हम कनेक्शन करेंगे, मजा आ जाएगा एकदम, बहुत अच्छे वे में। तो ये लर्न कीजिए। इससे ज्यादा जानना है तो फिर मैंने बेसिक पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ यार, जाइए वहां पे देखिए, ठीक है ना। तो समझ में आए पेन क्यों यहाँ पे पेन्स होगा, अब तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पे पेन का मतलब है दर्द और तकलीफ होनी चाहिए था, पेन्स। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैव बीन बॉट बाय मी। अब देखिए भैया, यहाँ पे ऑफ के बाद आपने अभी बताया था, देखो वहीं पे ऑफ के बाद प्लूरल लगा है, तो फिर गलती कहाँ है? मैंने बोला था टाइम और टेंस को भी देखना है।
हैव लगा हुआ है, आ लिखा हुआ है, ऑफ के पहले से हमेशा वो लीजिएगा, क्या लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब लीजिएगा। तो आ के अकॉर्डिंग एक, ये गलत है, यहां पे हैज आना चाहिए। क्या सर समझ में नहीं आया? थोड़ा सा अच्छे से समझा दीजिए। देखिए, डोंट वरी, मैं अभी बता दे रहा हूं मैंने क्या बोला। अभी मैंने ऑफ की एक कंडीशन समझाई थी आपको। मैंने समझाया था कि ऑफ के बाद आपका नाउन अगर काउंटेबल आता है, काउंटेबल, तो प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल। अगर अनकाउंटेबल आता है तो सिंगुलर रहेगा। अब सर ये बता दो कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहां से यूज करेंगे? देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे वो इसके आगे जो वर्ड होगा ना, नाउन प्रोनाउन जो भी होगा इसके आगे वर्ड। देखिए यहाँ पे, लेट मी रेज दिस वर्ड, जो ये वर्ड होगा ना इससे डिसाइड होगी। अगर ये सिंगुलर है, ध्यान से लिख लीजिएगा, मैं इतना बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूं, अगर ये वर्ड सिंगुलर है तो यहां हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लिख देना। अगर वर्ड प्लूरल है तो यहां प्लूरल लिख देना। और समझ में आया क्या बोला मैंने? ये बोला कि ऑफ के पहले से डिसाइड होता है हेल्पिंग वर्ब क्या नहीं है, नाउन काउंटेबल है, ये इसके बाद डिसाइड होता है नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल सिंगुलर होगा। दो चीजें एक साथ सिखाई है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था सर? ऑफ के पहले से आपने बोला हमें कुछ देखने नहीं है, आ लिखा है, अपेयर सिंगुलर, अपेयर के लिए है जाना चाहिए। खत्म, कितना आसान था। नेक्स्ट चलते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग या नो एरर। अगर आपने अभी मेरा डिस्कशन अच्छे सुना होगा, मैंने इस वाले क्वेश्चन में बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा एस नहीं लगता, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर है बिल्कुल, अगर किसी ने पकड़ा है तो आंसर सही है, सीनरीज नहीं होगा। सर आपने अभी बताया है कि सीनरीज, लगेज, इंफॉर्मेशन, वेकेशन, ये जितने भी वर्ड होते हैं, फिल्थ, ये कभी भी आपके प्लूरल नहीं बनते, इनमें एस नहीं लगता। इस चीज को आपको याद रखना है, इनमें कभी भी आपका एस नहीं लगता, ठीक है। यार बहुत गर्मी लग रही है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एकदम बंद है पूरा कमरा और मैं आपके लिए यहाँ पे शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। और आपको अगर ये कुछ फायदा होता है इससे तो एक सब्सक्राइब करके चले जाना और थोड़ा सा लाइक और साथ में कमेंट अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए। ओके, चलिए आपका सजेशन भी हम ध्यान रखेंगे। लिखा है नेक्स्ट, द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलोबरेटली कर्व्ड, नो एरर। अब ध्यान से देखिए, ये अपोस्ट्रोफ एस, पता है ये अपोस्ट्रोफ एस की कितनी बड़ी कंडीशन है? देखो यार, बात अपोस्ट्रोफ एस सिस्टम की, इसका मतलब होता है का, के या की, और एक होता है ऑफ सिस्टम। देखो अच्छे से लिख के जाना, मैंने पहले भी बोला है ये आपको बहुत काम आने वाला है। का, के, की, क्या बताया मैंने? मैं बात ये कर रहा हूं कि जो आपका अपोस्ट्रोफ एस सिस्टम होता है, ये दोनों के दोनों आपके जो है ये ऑनर से बताते हैं। ऑनर से क्या बताते हैं? ऑनर से बताते हैं सेंटेंस में कि आपका पोजीशन है, क्या है, उसकी बात करते हैं। ऑनरशिप में मतलब कि आपका अधिकार, मालिकाना हक बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। यू कैन से पोजीशन बताते हैं, क्या बताते हैं? पोजीशन, मालिकाना हक बताते हैं। अब बात आती है अपोस्ट्रोफ एस कब यूज करें सर? सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जो एरर है ना, यहाँ यहीं पर एरर है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता, यानी कि अपोस्ट्रोफ एस आपका केवल और केवल लिविंग के साथ लगता है। अपोस्ट्रोफ एस केवल और केवल लिविंग के साथ लगता है, लिविंग के साथ लगता है अपोस्ट्रोफ एस, ठीक है। अब बात आती है आपका ऑफ। ऑफ सिस्टम का क्या कंडीशन है? यानी कि सर वहां पे ऑफ लगाना चाहिए था। जो ऑफ है आपका ये नॉन लिविंग के साथ लगता है। ऑफ आपका नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के साथ लगता है, यही बात याद रखनी है। आप इसको देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्या बोला मैंने? अपोस्ट्रोफ एस का, के, की लिविंग के साथ लगता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगता। और ये दोनों के साथ लगता है, लिविंग नॉन लिविंग जानते हो ना, जीवित व्यक्तियों को या फिर कुछ भी, तो उसके साथ लगेगा अपोस्ट्रोफ एस। क्या सर थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। मैंने कहा ये राम का पेन है, राम्स पेन, क्या ये सही है? चेक करो मुझे जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, बिकॉज राम है लिविंग, लिविंग के साथ क्या लगता है? ऑफ भी दिख रहा है सर, अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ तो लगा, क्या सर ऐसा भी लिख सकते हैं? द पेन ऑफ राम, बिल्कुल, क्योंकि ये लिविंग है, राम लिविंग है, लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफ एस भी लगता है, लिविंग के साथ ऑफ भी लगता है। ध्यान रखिएगा, जो मैंने लिखा है इसको रट लो, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मैंने लिखा, कोई आप लिखते हो टेबल्स लैग, आपने लिखा टेबल्स लैग, लैग्स, गलत। बिकॉज टेबल क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है ना, टेबल्स आपका क्या है? टेबल आपका नॉन लिविंग है, दैट्स व्हाई यहाँ पे द लैग्स ऑफ टेबल आना चाहिए, द लैग्स ऑफ टेबल आना चाहिए, याद रखिएगा। बिकॉज
आपका, मैंने क्या बोला, आपका जे द लैक्स ऑफ टेबल, इसके साथ केवल और केवल ऑफ सिस्टम लगता है, नॉन लिविंग के साथ ऑफ सिस्टम बस लगता है, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता। क्लियर? यानी कि मैंने क्या बोला, नॉन लिविंग के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता, और लिविंग नॉन लिविंग मतलब लिविंग के साथ दोनों ही लग जाते हैं। यानी कि अपोस्ट्रोफ एस एक में लगता है लिविंग के साथ, और ऑफ सिस्टम दोनों में लगता है। क्लियरिफाई? क्लियर? एक एग्जांपल और दे दूं क्या? एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, राधा की कार, दिस इज राधाज कार, खत्म। राधा लिविंग है, अपोस्ट्रोफ एस आ सकता है, ये लिखा है लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफ एस। मैं बोल दूं दिस इज द कार ऑफ राधा, बिल्कुल सही, बिकॉज ये राधा लिविंग है, अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ दोनों आते हैं, आपके सामने लिखा है, खत्म। देखो लिविंग यहां भी, लेकिन नॉन लिविंग तो एक ही जगह है, देख सकते हो। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ऑफ के, मैंने क्या बोला, वर लगाया है, ध्यान रखना, प्लूरल फॉर्म लिखी है, क्या है सही है, चेक इट आउट करो। ऑफ के बाद शूज लिखा है, बिल्कुल सही, पीसीएन हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि शूज को गिन सकते हैं इसलिए प्लूरल लगाया, मैंने पहले भी बताया था ऑफ के बारे में। अब ऑफ के पहले से पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, तो ये गलत है, यहां वाज आना चाहिए। क्लियर ना? तो इसका आंसर हुआ आपका सेकंड। तो ये रहे हमारे 7 क्वेश्चन और स्पेशल नाउन से रिलेटेड। ये 7 क्वेश्चन तो मैंने नाम के लिए थे और उसमें काफी मैंने रूल बताए हैं। अगर इन रूल्स को आप याद रखते हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रैक्टिस सेशन की, मैंने जो डाली है, बहुत सारी वीडियो हो चुकी हैं, आप देख सकते हो, 60 रूल, 20 रूल, 50 रूल, और मैंने क्वेश्चन के थ्रू सब कंटिन्यू करा रहा हूँ। तो आप इनको देखकर बहुत ही बेहतरीन अपनी ग्रामर का वोकैब नॉलेज सब कुछ कर सकते हो। वोकैबुलरी भी चला रहा हूँ, होमोनिम्स भी आ जाएंगे आपके। आपको इंग्लिश ग्रामर में जो भी आपको डाउट होगा, किसी भी, मेरा चैलेंज, आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इंग्लिश ग्रामर में, आप कमेंट में बताइए आपको क्या कंटेंट चाहिए, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। और ये रहे, आपको नोट डाउन करना है। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।